Hey guys, welcome back to my channel Automation Rahul. So we have discussed in last video that input and output statement and command line argument. What is command line argument? So now we are going to discuss about output statement. What is output statement? How many ways we can run an output statement? Okay, what is the features in output statement and all of these things. So let's start without wasting our time. So guys, सपोज मेरे को क्या कहते हैं एक मेरे पास आई हैव मल्टीपल वेरिएबल्स एंड आई assign this variable a values. Okay, so so suppose I want to print this all values between I'm I'm just printing this values. Okay, so the thing is that कि मैं ये कहना चाह रहा था कि by default this commas give a space between these two values. Okay, have you seen the space between these two values? So that's a comma do by default. If you don't want this space, so when we go for separate attribute, there is a separate attribute in Python. With the help of separate attribute we can do with our requirement. So ये कहना चाहता था फ्रेंड्स के सेपरेट एक एट्रीब्यूट है पाइथन में जिसके हेल्प से हमें सपोज स्पेस नहीं चाहिए, सो हमें कॉमा चाहिए इन बिटवीन दिस वैल्यूज. सो वी जस्ट add a comma between this single quote. Okay, now run this one. You can see here that comma is coming between these values. Okay, I don't want this comma, I want this colon, so we can just put a colon. Then you can see here this is another way of the output statement. Okay, now we go for the third one. Suppose I have a multiple lines. Okay, I have a multiple lines like this. Print hello. Okay, just copy paste this. Print hello Rahul Python Java. Okay, I have this lines. So I don't want to print this line one by one. Okay, I need this to print in a single line. So what can I do for this? There is an attribute in Python which is called AND attribute. With the help of AND attribute we can do this like this. Okay, and like this. Sorry, it is coming after the quote and this. ठीक है, and this. Okay guys, तो ये हम एंड एट्रीब्यूट की तरह से हम इसे कर सकते हैं. यू कैन चेक है hello Rahul Python Java. Okay, but there is no space between these words. So why this is coming in like this? Because we don't give any space between these quotes. So we just give this space between these quotes. Okay, so you can check and now run the program. Now you can see here there is a space between this output. Okay, so AND is also an attribute in Python. With the help of AND attribute we can print a multiple line in a single line. Okay, now you got my point. Now we go for what? Now we go for the another one. And what is the another one? नेक्स्ट है तो दोस्तों हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास करा सकते हैं. मतलब ये हुआ, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट की वैल्यू है 10, 20, 30, ठीक है, एंड एक टपल है मेरे पास और उसकी वैल्यू है 40,
50,60। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट एल करना है एंड प्रिंट टी करना है। ठीक है, तो हम प्रिंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं, लिस्ट टपल वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट। ओके, तो यू कैन चेक हेयर लिस्ट एंड प्रिंट टपल आर प्रिंटेड हेयर। ओके, नाउ हम जो क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग और एनी आर्गुमेंट भी पास करा सकते हैं। कैसे, सपोज मेरा ये है एस इक्वल टू राहुल, ठीक है, एंड ए इक्वल टू 26। ओके, एंड S1 इक्वल टू जावा। ठीक है, तो जावा इज अ स्ट्रिंग, सो वी कैन put in a string java, and S2 is equal to python. Suppose that we have these variables. Okay, we can print this variable like this: print hello as your age is a। ठीक है, and print you are teaching what, S1 and कॉमा S2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, तो हमारा एरर गायब हो गया। ठीक है, अब नाउ हम रन कराते हैं इसे। तो यू कैन चेक हियर, हेलो राहुल, योर एज इज 26 एंड यू आर टीचिंग जावा एंड पाइथन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, और कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मेटेड प्रिंट स्ट्रिंग क्या होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है, सपोज %i इज इक्वल टू व्हाट, इंट टाइप लेता है। ठीक है, %d इज ऑल्सो टेकिंग अ इंट टाइप। ओके, एंड %f is taking a float type. Okay, and %s is taking a string type, string। ठीक है, तो ये हमारे इसका सिंटैक्स कैसा होता है, सिंटैक्स होता है प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब हम एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट इसके अंदर डाल देंगे, एंड % ब्रैकेट में वेरिएबल लिस्ट। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। ठीक है, प्रिंट a वैल्यू इज %i। अब हमने i ले लिया। ठीक है, i ले लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो %i की जगह क्या आएगा, इंट आएगा। और इंट कौन सा आना चाहिए, उसके लिए हम करेंगे भाई % हमारा a की वैल्यू क्या है, a, तो हम यहाँ पर a कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे रन कराएंगे तो क्या आएगा, a वैल्यू इज 10। समझ गए दोस्तों, i किससे होता है, इंट से होता है, d किससे होता है, इंट से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं प्रिंट b वैल्यू इज %d से %d एंड c वैल्यू इज %,
डी तो कॉमा परसेंट बी कॉमा सी और इसे हम कर लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, तो दोस्तों जब इसको रन करवाएंगे तो ये देखिए इसका वैल्यू आ गया है, मतलब परसेंट ए की जगह हमने ए की वैल्यू असाइन करा दी थी। एंड ये फॉर्मेटिंग होती है परसेंट डी परसेंट आई। तो परसेंट आई एंड परसेंट डी इंट वैल्यू लेता है। अगर हमें स्ट्रिंग के लिए लेना होता तो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी देख लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। एस इक्वल टू सपोज एस इक्वल टू राहुल, ठीक है। एंड लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30। ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कराते हैं और देखते हैं हम स्ट्रिंग को कैसे करते हैं। हेलो परसेंट एस फॉर्मेटिंग दिस इज सॉरी हेलो द लिस्ट ऑफ items are percent s, ओके। एंड देन अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू कौन कौन सी रखनी है, हमें रखनी है एस की वैल्यू रखनी है एंड लिस्ट की वैल्यू रखनी है, ठीक है। हमने दोनों की वैल्यू रख ली है, ठीक है। तो पहले परसेंट एस में क्या आएगा, राहुल आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट पे एस रखा है। और दूसरे परसेंट एस पे क्या आएगा, लिस्ट आएगा, ठीक है। रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया, मतलब हमारा पहले जो हमने पहले एस रखा, अगर हम इसे रिप्लेस कर देते, सपोज पहले मैं लिस्ट रखता एंड बाद में एस रखता, तो मेरा पहले लिस्ट प्रिंट होता और बाद में एस प्रिंट होता, ठीक है। रन करा के देख लेते हैं एक बार इसको भी। पहले मेरा लिस्ट आ गया एंड फिर मेरा नेम आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो परसेंट एस क्या करता है, परसेंट एस डिक्लेयर करता है स्ट्रिंग टाइप को, लिस्ट टाइप को, टपल टाइप को, इस प्रकार से करता है, ठीक है। अब हम यही सेम चीज़ इसके लिए करते हैं, डिक्शनरी के लिए करते हैं, डिक्शनरी के लिए, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए कैसे करेंगे हम, डिक्शनरी के लिए देख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू राहुल, ठीक है। नेम इज इक्वल टू राहुल एंड सैलरी इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है। एंड 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 गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू सुमन, ठीक है। हमने ये स्ट्रिंग में दे दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू सुमन, ओके। नाउ हम इसे प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो। अब ये देखिए ये हमारा डिक्शनरी का 0, इसका मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हेलो 0 योर सैलरी इज 1, ओके। एंड योर गर्लफ्रेंड नेम इज 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट लगाना है, डॉट फॉर्मेट सबसे पहले क्या था हमारा नेम, उसके बाद कॉमा सैलरी, उसके बाद क्या था गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब हमने ये रख दिया है। अब जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, चेक कर लेते हैं। एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं, क्या मिस्टेक कर दी है हमने। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले यहाँ पर 3 कर दिया था गलती से, इसलिए हमारा ये रन नहीं हो रहा था। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए ये आ गया, हेलो राहुल योर सैलरी इज 1000 एंड योर गर्लफ्रेंड नेम इज सुमन। तो ये हमारा रन हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा
फॉर्मेट की हम क्या इस तरह के से भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखने वाले हैं फ्लो चार्ट, फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।